the administration, the civil society should come forward and accept this challenge. It's a responsibility of every citizen. I hand over this mic to our young and energetic student, Peer Humera, to kick-start this program. Peer Humera. Glory is to Allah and praise is to Allah. There is none worthy of worship. There is no might and no power except by Allah, and Allah is the most great. Esteemed Principal Sir, Chief Guests, and other teachers, my dear brothers and sisters, I pin our hope that you will accept my Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Power does not come from bodily capability. It comes from an indomitable will. As human beings, we all have weaknesses that can at times bring us to our knees and our world up to downwards. But taking the first step shows that we have the courage and will to turn life towards good. With this beautiful quote, I welcome you all in this program that is about drug abuse and illicit trafficking. This is me, Peer Humera, your host for today's program. As we all know that no program can be started without rememberizing our Almighty Allah, who is the creator of whole world. For this segment, let me have the privilege to call upon the dais Brother Omar Nazir of class 9th. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. Jazakallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. After recitation of Holy Quran, it's mandatory for every Muslim to praise our Prophet Muhammad, peace be upon him. Because Muhammad, peace be upon him, was chosen as a recipient and messenger. Muslims from all walks of life try to follow his example. So to get this sparkling opportunity, please give round applause to Brother Idris of class 12th. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
दरे अक़दास पे स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल अशकोरा, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल मुकाम हिंदवंतपुरा। यहाँ पे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कोई तैयारी करके तो नहीं आया हूँ, लेकिन जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्पीकर्स ने बोला है उन्हीं पॉइंट्स पे कुछ पे मैं रोशनी डालना चाहूँगा। आज का डे जो मनाया जा रहा है 26 जून, एक ही स्पीकर ने मेंशन किया है कि ये कब से मनाया जा रहा है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि क्यों मनाया जा रहा है ना? तो एक चीज है, अगर आप देखोगे इस साल का थीम जो एक स्पीकर ने बोला था, थीम है एविडेंस इज क्लियर दैट इज इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। एविडेंस इज क्लियर, सबको पता है डिफरेंट लोग मतलब ड्रग एब्यूज में मुलावस है, ड्रग एडिक्शन में मुलावस है। अब हमें कोशिश करनी है हम प्रिवेंशन में इन्वेस्ट करें। तो प्रिवेंशन में हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे? यही जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये ज्यादा से ज्यादा करें ताकि हम लोगों को इस चीज से बचाए। एक और स्पीकर ने एक थीम बताया था इसका, कोई बता सकता है क्या बताया था? जस्टिस फॉर हेल्थ बोला। हेल्थ जो है, आपकी हेल्थ जो है बेटा, याद रखना ये आपका नहीं है, ये अल्लाह की देन है। ये अल्लाह की तरफ से आपके पास अमानत है और आप इस अमानत में खयानत नहीं कर सकते। जस्टिस फॉर हेल्थ मतलब वही है, आपने उसके साथ जो अमानत आपके पास है आपने उसकी खयानत नहीं करनी, आपने उसके साथ जस्टिस करना है। ठीक है, कोई ये इस गलत फहमी में ना रहे कि मेरी सेहत जो है, मैं शायद सेहतयाब हूं, मैं ये मेरी अपनी देन है, कोई ये किसी का अपना नहीं होता है। आपकी लाइफ जो है, आपकी हेल्थ जो है, ये सब अल्लाह की देन है और ये आपके पास अमानत है। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ये वापस ले रहा है, लेकिन तब तक ये आपके हाथ में है, तब तक ये आपके पास अमानत है। आप इस अमानत की कैसे रखवाली कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। ठीक है, तीसरी चीज मैं इसी पे बोलना चाहूंगा। डिफरेंट स्पीकर्स ने किसी को जिम्मेवार ठहराया, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को, हम ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस है, हमें हर चीज का सामना करना है। अगर हम कहेंगे कि नहीं समाज में कुछ भी गलत नहीं होना चाहेंगे फिर मैं ठीक रहूंगा, वो तो फिर फरिश्ते की बात है ना। फरिश्ते के पास नफ्स नहीं है तो वो गुनाह नहीं करता है। हमारे पास नफ्स है ना, तो हम तभी तो हमारा एग्जामिनेशन तो यही है ना, इम्तिहान तो हमारा यही है कि हमें डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना है। लेकिन हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे? सबने डिफरेंट लोगों को जिम्मेवार ठहराया, लेकिन क्या किसी ने यह बताया कि वो अपने आप को कितना जिम्मेवार ठहराता है? आपके पास वो विल पावर है कि आप अपने आप को इस चीज से दूर रखेंगे? अगर आपके स्कूल में, मैं इस स्कूल के एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपके स्कूल में एक बच्चा आता है, वो चरस लेके आता है, वो कोई ड्रग लेके आता है, कोई साइको एक्टिव एजेंट लेके आता है, तो मुझे बताओ वो दूसरे अपने फ्रेंड को देता है, क्या उस फ्रेंड के पास, जो उसका दूसरा फ्रेंड है, उसके पास इतना कन्विक्शन पावर है कि वो अपने आप को उस चीज से दूर रखे? वो इस अपने दोस्त को बोले दफा हो जा मेरे से, ये मुझे नहीं चाहिए, बोलता है? नहीं बोलता है। प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने आप में कम रखो। ये सुन रहे हैं, आवाज आ रही है ना पीछे मेरे, माइक के बगैर भी आएगी, कम रखो। तो वो विल पावर है हम में कि हम अपने आप को इस चीज से दूर रखें, वो नहीं है। दिक्कत यहीं पे है, फिर हम दूसरों को जिम्मेवार ठहराते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ पे बोला, इसने 5 फैक्टर्स इसमें स्पेल आउट किए: पेरेंट्स, टीचर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। मैं ये सारा मिला के बोलूंगा ये सारा सोसाइटी है, क्योंकि हम सारे तो इसी सोसाइटी के पार्ट है ना, सारे इसी सोसाइटी से आए। तो ये सोसाइटी को सुधारने के जिम्मेवार कौन है? हम ही है ना सारे। ठीक,
जब मैं अपना पार्ट इस सोसाइटी में प्ले नहीं कर रहा हूं, जब आप अपना पार्ट सोसाइटी में प्ले नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे ब्लेम कर सकते हो किसी इंस्टीट्यूट को, किसी गवर्नमेंट एजेंसी को, कुछ को? प्रॉब्लम यह है कि हम सब अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। हम सारे पार्ट है इसी सोसाइटी के, और इसी सोसाइटी से आज मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, यहाँ पे कल आप होंगे, कल ये आप में से कोई भी हो सकता है ना? आज आप बच्चे हो, कल आप ही पेरेंट्स होंगे, आप ही टीचर्स होंगे। हम भी किसी जमाने में स्टूडेंट्स थे आपकी तरह। आपके टीचर साहिबान यहाँ बैठे हैं, ये भी आपकी तरह किसी जमाने में स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो ये एक साइकिल चलता है, इसमें हम किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। ये सबकी जिम्मेवारी है, कोई एक फर्द इसमें जिम्मेवार नहीं हो सकता। कि हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम कैसे इस चीज से दूर हटे, हम कैसे इस चीज को इस समाज से बाहर करें। दूसरी बात ये बताऊं, मोस्टली मैं थोड़ा पहले टॉपिक पे ही आता हूं, 2 लाइनें बताऊंगा इस पे। सबने बोला ड्रग एब्यूज, और थोड़ा मिसकंसेप्शन है शायद, ड्रग एब्यूज एंड ड्रग एडिक्शन ये सेम है। देखो बेटा, ड्रग दोनों चीजों के लिए यूज होता है। ड्रग आपके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है, ड्रग मनशियात में नशे के लिए भी यूज होता है। जो नशे के लिए यूज होता है, हम जिस चीज के लिए असली बात करते हैं उसको टेक्निकली बोलते हैं साइको एक्टिव एजेंट्स और साइकोट्रॉपिक एजेंट्स। वो उनकी मेन डेफिनेशन है। किसी ने अपना ये देखा होगा कि नेट मोबाइल सबके पास है ना, क्या किसी ने सर्च किया गूगल पे कि ये क्या होता है? किसी ने आज के डे के बारे में किसी ने गूगल सर्च किया कि क्या होता है ये आज का जो डे मनाया जा रहा है, ये क्यों मनाया जा रहा है? – 1989 से शुरू हुआ। अगर आप देखोगे यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था 1987 में, फिर 1989 से ये शुरू हुआ। लेकिन क्यों हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है? इट गोज बैक टू 1839। एक सिटी थी हुमैन, वहां का एक जो रूलर था लिम जेक्सुआ, उसने एक पॉपी डिस्ट्रक्शन मुहिम छेड़ी थी ऑन 25 जून। आप लोग स्टूडेंट्स हो यार, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने देखना है। जब आप लोगों को ये बताया गया ये टॉपिक है, तो आपको वो मतलब इंट्यूशन आना चाहिए, आपकी वो चाहत होनी चाहिए कि मैं सीखूं इसके बारे में, ये है क्या चीज, हम क्यों कर रहे हैं, ये इसका मकसद क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। एज अ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सीखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हम आप लोग अक्सर ये हम भी करते थे कि आए हैं तंग करने, ठीक है ना, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं। हम स्कूलों को क्यों चुन रहे हैं इन प्रोग्राम्स के लिए, खासकर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि ये जो आपका एज ग्रुप है ना, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग इन्वॉल्व हो इसमें, मैं ये कहता हूं कि ये एज ग्रुप जो है, ये टीन एज ग्रुप जो है, ये सबसे वल्नरेबल है। इस एज ग्रुप में आपकी जिंदगी बन भी सकती है, आपकी जिंदगी बिगड़ भी सकती है। यहीं पे आपका कैरियर बनेगा, यहीं पे आपका कैरियर बिगड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चे को समझ नहीं आती है, क्योंकि वो इमोशनल होता है बहुत ज्यादा, उसको समझ नहीं आती मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी क्योंकि जो ड्रग पेडलर्स है, जो ड्रग्स बेचते हैं, जिन्होंने इसका बिजनेस बनाया है, वो क्या करते हैं, वो आपको मुफ्त में देंगे। स्कूल में आए, आपका कोई फ्रेंड होगा, वो बेचता है, वो आपको 1 बार 2 बार मुफ्त में देगा, ये लो मजा लो इसका। जब 1-2 बार आपने मजा लिया, उसका ऐसे मजा चाहा, फिर उसके बाद क्या होता है, तीसरी बार आप उससे मांगने जाओगे कि अब आपकी आदत लग गई है, तो तीसरी बार बोलता है ये मुफ्त नहीं मिलता, आप पैसे दो। ठीक, अब आपने पैसे दिए, महीना 2 महीना साल आप बर्दाश्त कर सकते हो, आप पैसे अरेंज कर सकते हो, पैसे देके खरीद सकते हो, मतलब आप एडिक्ट बन गए। लेकिन साल के बाद आपके पास पैसा भी नहीं है, कमाते भी कुछ नहीं हो, फिर क्या करते हो, फिर लाते हैं, बेचते भी हैं, उसी में से यूज भी करते हैं, या चोरी करते हैं, या बाकी क्राइम्स में मुलव्वस होते हैं। ठीक, तो जो पहले वो नॉर्मल इंसान था, उसको एक फ्रेंड ने इन्वॉल्व किया, मुफ्त में पिला के वो एडिक्ट बन गया, आहिस्ता आहिस्ता वो एक पैडलर बन गया, तो उसने सबको दिया। ये चेन बन जाती है। और ये चेन स्टार्ट कहां से हो जाती है, मोस्टली
इस स्टैंडर्ड के स्कूल से, जो हायर सेकेंडरी हाई स्कूल है, यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से बच्चों को डिरेल किया जा रहा है, यहाँ से बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, और कॉलेजेस में भी, ठीक, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटीज जब जाते हैं वहाँ थोड़ी सेंस मतलब मैच्योर बच्चे होते हैं, तो उनको डिरेल करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो जो मेन टारगेट ग्रुप होता है उनका पैडलर्स का, वो ये एज ग्रुप होता है। दैट इज वाई कि हमारा हमेशा फोकस होता है कि हम आप लोगों से बात करें इस बारे में। आप लोग साइंस स्टूडेंट हो सारे, साइंस आपने पढ़ा, हाँ, नर्वस सिस्टम पढ़ा है सबने, हाँ। अब ये मैंने आपको बताया कि आप लोग एक बार आप लोगों को दिया, आप लोग यूज करते हो उसको, आपको आदत पड़ जाती है। ये आदत क्यों पड़ जाती है? आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा है, शाबाश शाबाश शाबाश। जब हम पहली बार लेते हैं तो हार्मोन रिलीज होता है जिसे डोपामिन कहते हैं। वो ऐसे भी रिलीज होता है आइसक्रीम खाने से, प्लेइंग से। पहली बार लिया तो उसकी आदत पड़ जाती है, तो दोबारा डोपामिन रिलीज करने के लिए वो दूसरी बार ड्रग्स लेते हैं सर। थैंक यू। आपके ब्रेन में एक पाथवे होती है, उसको बोलते हैं Come on the stage for consolation prize. बेटा इधर देखो। Next to Toiba Akhtar, CHSS MH Khora. Next to Syed Toiban Musa, Green Peace School. Please come on the stage for receiving this consolation prize. Next one, Azazul Nazir, High School, Supernagama. Next one, Muntazir Hassan, BHS Mandigam. Please come on the stage. Next one, Dr. Subir. Please come on the stage. Veer Rasik, Boys High Secondary School, Ashpura. Please come on the stage for receiving consolation prize. Now I will declare first three positions. Third position goes to Veer Rasik, Boys High Secondary School, Ashpura. Please come on the dais for receiving appreciation award from Aslim Augustus. Third. Veer Rasik got third position in the speech competition on drug trafficking, illicit drug trafficking. Now, second position goes to Syed Toibun Musa, Green Peace School. Please come on the stage for appreciation. Good. Now, first position goes to Sirat. Please have a clap for Sirat.